So every public office have an important work of delivering service to the people. So important aspect of governance, that is qualities of service delivery. So service delivery, for example, PDS, health services, light services, they have poor grievance redressal mechanism. So service delivery decreases, quality of service delivery decreases, trust of the people decreases. So because of the poor quality of service delivery, it leads to the trust deficit between the people and the government. Poor service delivery lead to the nationalism, regionalism, and migration of the people from one region to another. Lead to the hardship for the common people. Hardship for the common people. तो बोल रहा है सी छी फक क्वेश्चन जीएस कितने ज़्यादा फकिंग क्वेश्चन है. तो सी से मेरा कॉस्ट इफेक्टिव एंड देन चॉइस होनी चाहिए सर्विस डिलीवरी की. देन देयर शुड बी फास्ट, शुड बी क्वालिटेटिव, शुड बी क्वालिटी, शुड राइट क्वालिटी, एंड ऑल्सो ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म होना चाहिए एंड स्टैंडर्ड्स को फॉलो करना चाहिए. ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म एंड स्टैंडर्ड्स. सो क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी डिटरमाइन द एक्चुअल एक्सपेक्टेशन ऑफ द सिटीजन एंड एक्चुअल डिलीवरी बाय द people. So what is the expectation and what actually delivered? So there is a gap between it. If the division of the service delivery is expected quality, then the service delivery is good. So what is the quality of service delivery? How you will calculate it? That is expectations of people and actually delivery of the service by the institution. Actual delivery, the gap between the expectation by the people and actual delivery of the service, the less is the gap, the better is the quality of service delivery. So there are 5 dimensions of quality, service quality. There is a 5 dimension of service quality. तो क्या करना है, 5 डायमेंशन का रट्टा लगाना है. तो रट्टे से आर से रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, एश्योरेंस, टेंजिबल एंड एम्पैथी. रिलायबिलिटी, दैट इज रिलायबिलिटी, रिस्पॉन्सिवनेस, assurance, tangibles, and empathy. So reliability, he means ability to perform the promise and serve, that is dependably, accurately. So reliability means ability to perform the promise accurately. Then responsiveness, you are responsive to the needs of the customer. And assurance, that the knowledge and courtesy of the employees, ability to convey trust and confidence. That is assurance, ability to convey trust and confidence. TC, trust and confidence. T से टेंजिबल्स, दैट इज अपरेंस ऑफ द फिजिकल फैसिलिटीज, इक्विपमेंट एंड पर्सनल, मतलब इंफ्रास्ट्रक्चर होना चाहिए, इक्विपमेंट होना चाहिए, पर्सनल होना चाहिए टू कैरी आउट द डिलीवरी सर्विस. देन एम्पैथी, दैट इज प्रोविजन ऑफ नोइंग एंड अटेंशन टू द कस्टमर नीड्स. सो मस्ट रिमेंबर रट्टे, that is a ratte. Responsiveness, reliability, and assurance, tangibles, and empathy. So what is the reason? Because bureaucratic attitude of high-handedness. Then infrastructure, lacking poor infrastructure and poor planning. There's a top-down approach rather than top-up approach. And poor capacity building, PCB, poor capacity building of the staff. No standards set up by the organization. So no standards set for the delivery of the services. And poor accountability and feedback mechanism. So poor accountability and feedback mechanism. And poor citizen awareness. Poor citizens are not aware about their rights. So poor infrastructure, poor planning, poor delivery of the service, no standard setup, poor accountability, and bureaucratic attitude, and poor capacity building. So Sabathan model 3 pillar पे based है. It is a citizen charter that provides a standard of services that an organization needed to deliver, and there should be grievance redressal mechanism. Grievance redressal mechanism, and there should be capacity building on the employees to provide a better service to the people. तो पता ऑर्गेनाइजेशन में हो तो क्या करोगे? फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन योर स्टैंडर्ड डिफाइन कर दिए, ठीक है. आइडेंटिफाई कौन क्लाइंट्स हैं, ये स्टैंडर्ड किसके लिए है, तो क्लाइंट्स को आइडेंटिफाई करो, ठीक है. तो फर्स्ट ऑफ ऑल डिफाइन स्टैंडर्ड एंड आइडेंटिफाई क्लाइंट. सेट स्टैंडर्ड फॉर ईच सर्विसेज. तो सेट स्टैंडर्ड फॉर ईच सर्विसेज, हर एक का सर्विस क्या होगा, तो हर एक तो स्टैंडर्ड सेटअप कर लिया नॉर्मल, फिर हर एक सर्विस का लिए अलग अलग सर्विस के लिए अलग अलग स्टैंडर्ड सेटअप करो. तो सेटअप स्टैंडर्ड फॉर डिफरेंट सर्विस. देन डेवलप कैपेसिटी टू मीट स्टैंडर्ड. अब ये ऑर्गेनाइजेशन में बहुत सारे लोग हैं, इन लोग को ट्रेनिंग कराओ किस तरीके से आप सर्विस डिलीवर करोगे. तो डेवलप कैपेबिलिटी टू मीट स्टैंडर्ड. देन परफॉर्म टू अचीव सेट स्टैंडर्ड. फिर परफॉर्म भी करो, इनको काम में लगाओ. परफॉर्म टू अचीव सेट स्टैंडर्ड. फिर जो काम कर रहे हैं उनकी मॉनिटर भी करो. तो मॉनिटर परफॉर्मेंस अकॉर्डिंग अगेंस्ट सेट स्टैंडर्ड के सेट जो स्टैंडर्ड्स रखे हैं उसके लिए परफॉर्मेंस हो रहा है कि नहीं हो रहा है. फिर इवैल्यूएट थ्रू इंडिपेंडेंट. इवैल्यूएट कौन करेगा, तो ये ऑर्गेनाइजेशन के बाहर कर ले. थर्ड पार्टी मैकेनिज्म. तो थर्ड पार्टी मैकेनिज्म आएगी इवैल्यूएट करने. इवैल्यूएशन थ्रू इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी मैकेनिज्म. तो इंडिपेंडेंट थर्ड पार्टी ये कौन है, थर्ड पार्टी मैकेनिज्म. देन कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. फिर कंटिन्यूस ये जो फीडबैक देंगे उसके क्या करो,
मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन से क्या करो, इंप्रूवमेंट करो, कंटिन्यूस इंप्रूवमेंट थ्रू मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन. सो हमें दोनों अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करनी है, इंटरनल थ्रू सिटीजन चार्टर एंड प्रॉपर मॉनिटरिंग एंड इवैल्यूएशन ऑफ इट, एंड एक्सटर्नल थ्रू इंडिपेंडेंट इवैल्यूएशन ऑफ द वर्क. देन दिस इज सिटीजन चार्टर. देन सोशल ऑडिट हो सकता है, अकाउंटेबिलिटी इंश्योर करना. देन सर्वोत्तम मॉडल, एंड हम क्या कर सकते हैं, ई गवर्नेंस ला सकते हैं. सिटीजन चार्टर होगा, सोशल ऑडिट होगा, देयर विल बी इन्वॉल्वमेंट, डायरेक्टली इन्वॉल्व द पीपल, देयर विल बी पीपल पार्टिसिपेशन एंड फॉर इंश्योरिंग अकाउंटेबिलिटी. So privatization is also seen one of the steps to ensure accountability and quality of service delivery. So some few examples of better service delivery: e-Seva of Andhra Pradesh. So for the payment of utility bill, e-Seva of Andhra Pradesh for payment of utility bills. Then Bhumi Puja, तो भूमि प्रोजेक्ट ऑफ कर्नाटका. कहाँ पे, कर्नाटका में. ये भूमि है ना, भूमि प्रोजेक्ट है फॉर कंप्यूटराइज डिलीवरी ऑफ लैंड रिकॉर्ड, कंप्यूटराइज डिलीवरी लैंड रिकॉर्ड्स. देन ईस्ट डिस्ट्रिक्ट, ठीक है, एंड डिजिटल इंडिया मिशन, आधार. तो सर्विस क्वालिटी के लिए डायग्राम क्या बना सकते हैं. सर्विस क्वालिटी फॉर एग्जाम्पल, देयर इज अ एक्सपेक्टेशंस ऑफ सर्विस, एक्सपेक्टेशन सर्विसेज एंड परसेप्शन ऑफ सर्विस. एक्सेप्ट जहाँ पे भी गैप होगा उतनी ही बुरी होगी क्वालिटी. पर देखो एक्सपेक्टेशन कितनी है और परसेप्शन ऑफ सर्विस, कैसी सर्विस मिल रही है फाइनली, ठीक है. एंड देन वी कैन डायरेक्टली इसको ऐसे कर सकते हैं. फिर इसको बता सकते हैं 5 मॉडल क्या आते हैं हमारे. रट्टे, क्या था, रट्टे, रिस्पॉन्सिवनेस, रिलायबिलिटी, देन दिस assurance, then tangibles. So there is a assurance, tangible and E से empathy. वो सर्वोत्तम मॉडल भी बना सकते हैं. सर्वोत्तम मॉडल में क्या है, इम्प्रूवमेंट इन द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी. तो यहाँ पे क्या होगा, सिटीजन चार्टर, देन ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म एंड सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी. तो सिटीजन एम्पावरमेंट को सिटीजन चार्टर से होगा, सिटीजन एम्पावरमेंट, ग्रीवांस रिडक्शन मैकेनिज्म से रिड्रेसल सेटिस्फेक्शन, एंड सर्विस डिलीवरी कैपेसिटी एनहेंसमेंट होगा. दिस इज सर्वोत्तम मॉडल. एंड ऑल्सो वी कैन इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, इम्प्रूविंग द वर्क कल्चर इन द organization. So when work culture is good, then employees will be motivated to provide the good services to the people.